Hi guys, welcome back to our channel I Study 2.0, and today we have continued state government, and in this video we have discussed about the state executive. The Constitution of India and we seek the same pattern of government in the state as that for the center, and that is a parliamentary system. Part 6 of the Constitution, which deals with the government in the state. Under Article 153 to 167 in Part 6 of the Constitution deals with the provision related to the state executive of the country. And the state executive is consist of the state governor, chief ministers, council of ministers, and the advocate general of state. And governor is the chief executive head of the state. Thus, there is no office of vice governor in the state like that of वाइस प्रेसिडेंट एट द सेंटर. तो जैसे कि सेंटर में वाइस प्रेसिडेंट होता है, ऐसा कोई वाइस गवर्नर की पोस्ट नहीं है किसी भी स्टेट में. एंड यूजली देयर इज अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, but the 7th constitutional amendment act of 1956 facilitated that the appointment of the same person as a governor for 2 or more state. तो after 7th constitutional amendment के बाद से गवर्नर एक या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए अपॉइंट किया जा सकता है. अब बात करते हैं गवर्नर की. तो जो गवर्नर होता है इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड लाइक द प्रेसिडेंट, नॉर ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. देयरफॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज़ ड्यूअल रोल. तो जो गवर्नर का जो रोल है वो ड्यूअल होता है. अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की. तो अपॉइंटमेंट में द इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट द गवर्नर फॉर ईच स्टेट बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट is responsible to nominate the governor for each state. Unlike the election of president, there is no direct or indirect election for the post of the governor. And office of a governor is not a part of union executive. Is an independent constitutional office, and the governor doesn't serve the union government and neither is subordinate. तो जो गवर्नर का ऑफिस होता है वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, किसी मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर नहीं आता है. And the nomination of a governor by the union and his appointment by the president in India is based on the Canadian model of government. तो जो ये हमारा गवर्नर वाला जो पोस्ट है वो हम यहाँ पे कैनेडियन मॉडल फॉलो करते हैं. तो जैसे कि हम बात करें तो अमेरिकन मॉडल की, वेयर द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड वाज ड्रॉप्ड, एंड द कैनेडियन मॉडल वेयर द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंशियल स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल वाज एक्सेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. तो अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की. तो क्वालिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ओनली 2 क्वालिफिकेशंस for the appointment of a person as a governor, that is he should be a citizen of India and he should have completed the age of 35 years होना चाहिए. And there are 2 conventions have also developed in this regard over the years. First, he should be an outsider. पहली बात तो कि वो outsider होना चाहिए, उसी same state से belong नहीं करना चाहिए, and he should not belong to the state where he is appointed, and so that there is a free from local politics. Second, the president is required to consult the chief minister of the state concerned so that the smooth functioning of the constitutional machinery in the state is ensured. तो जो चीफ मिनिस्टर से जो कंसल्टेशन का जो प्रोसीजर है वो इसलिए है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की. अब बात करते हैं टर्म ऑफिस ऑफ द गवर्नर. एज पर द आर्टिकल 156, एंड द गवर्नर shall hold office during the pleasure of the president, and the governor may by writing under his hand seal address to the president and resign his office.
And subject to the foregoing provision of this article is a governor hold the office for a term of 5 years, the date on which he enters upon his office. तो जिस दिन ये एंटर करते हैं ऑफिस से उस दिन से वो पीरियड काउंट होता है 5 years का. However, the term of 5 years is subject to the pleasure of the president के उसके ऊपर होता है. And further he can resign any time or by addressing a resignation letter to the president. And the Supreme Court held that the pleasure of the president is not justifiable. ऐसा प्रेसिडेंट ने बहुत सारे मैटर्स में बोला है. द गवर्नर हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस. ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम. तो कभी भी प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने की हुई हैं. बहुत सारे केसेस आए हैं बहुत सारी गवर्नमेंट के टाइम पे. अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस की. बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर. तो हम बात करते हैं पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स की. द एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट द स्टेट गवर्नमेंट टेक्स इज टू बी टेकन इन हिज नेम. तो जितने भी जो सारी चीज़ें होती हैं वो इनके नाम पे होती हैं. एंड he can make rules specifying the manner in which orders with the other instrument made executed in his name shall be authenticated. Rules for the same can be specified by the governor. He may or may not make rules to simplify the transactions of the business of the state government. चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय हिम. तो जैसे कि वहाँ पे सेंटर में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को. तो इस तरीके से यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं. इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अपॉइंट द ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा. जिन स्टेट्स में ट्राइबल एरिया मतलब ट्राइबल्स हैं तो वहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करने की वो भी गवर्नर के पास होती है. एंड ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड डिटरमाइंस देयर रेन्यूमरेशन. ही अपॉइंट्स द फॉलोइंग पीपल्स. जैसे स्टेट्स इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उनको अपॉइंट करता है गवर्नर. चेयरमैन, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट. और रिमूवल भी इनका यही करते हैं. And he can seek information from the state government. Under Article 356 of the Constitution of India, एक constitutional emergency जिसको प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है in the state is recommended to the president by him. तो यही प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं रिपोर्ट के थ्रू कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं मतलब किसी भी स्टेट में, तो तब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है अंडर आर्टिकल 356. The governor enjoy extensive executive power as an agent of the president during the president rule in the state. The president rule जब state में impose होता है तब ये extensive executive power को enjoy करते हैं as an agent of the president. Financial powers की बात करें तो he looks over the state budget being laid in the state legislature. His recommendation is a prerequisite for the introduction of money bill in the state legislature. And he recommends for demand for grants which otherwise cannot be given. तो यही recommendations देते हैं डिमांड मतलब ग्रांट्स वगैरह में, और जो मनी बिल वगैरह होता है उनमें recommendations चाहिए होता है. तो एंड कंटिजेंसी फंड की बात करें, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट इज अंडर हिम. ही मेक्स एडवांसेस आउट दैट टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर. तो जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, इस फंड ऑफ इंडिया जैसे सेंटर में होता है ऐसे ही कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट होता है. जब जो कि कोई अनफोर्सिन एक्टिविटी एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो वो वहाँ से यूज़ किया जाता है. किसी में मान लो कुछ इमरजेंसी हो गई है कहीं पे मतलब कोई एक्सीडेंट में, जब वो लोग जो लोग गवर्नमेंट वो देती है कि भाई इनको वो देते हैं पैसे दिए जाते हैं किसी फैमिलीज वगैरह को, तो वो कंपनसेशन जो दिया जाता है वो सब चीज़ें. एंड अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की. तो जो लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो जो एक गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. इन दैट कैपेसिटी ही हैज़ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस. तो फर्स्टली हम बात करेंगे ही कैन समन और प्रोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली.
तो ये उनको सम्मन ही कैन सम्मन और प्रोव कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। ही कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। तो जैसे कि जब पार्लियामेंट सेशन होता है एवरी ईयर, तो जैसे प्रेसिडेंट उसको प्रिसाइड करते हैं यहाँ पे, मतलब एड्रेस करते हैं किसी भी दोनों 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 हाउसेस को, ऐसे यहाँ पे गवर्नर करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, दोनों हाउसेस को। इफ एनी बिल इज पेंडिंग इन द स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर मे और मे नॉट सेंड अ बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्निंग द सेम। ही कैन नॉमिनेट वन मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जैसे प्रेसिडेंट वहाँ पे 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा में, ऐसे यहाँ पे करते हैं असेंबली के अंदर। And if the speaker of the legislative assembly is absent or same deputy speaker, and then governor appoints a person to preside over the session। मान लो अब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों ही एबसेंट हैं, तो ये किसी को अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। He can nominate 1/6 of the total members of the Legislative Council from the fields of literature, science, art, cooperative movement and social services। से जो नॉमिनेशन होता है काउंसिल का 1/6 जो होता है वो इन फील्ड से ये नॉमिनेट करते हैं। He can consult election commission for disqualification of members। तो ये जब मान लो जो कि मेंबर्स होते हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं किसी भी चीज़ की वजह से, कि जो कि मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो ये कंसल्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन से किन बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। With respect to the bill introduced in the legislature, state legislature, he can give his assent, withhold his assent and return the bill। गिव हिज एसेंट का मतलब ये उसको परमिट कर देते हैं या मतलब उसको अलाउ कर देते हैं, एप्लीकेबल हो जाता है, फिर वो बिल लॉ बन जाता है। विद होल्ड मतलब उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए होल्ड पे रख लेते हैं, मतलब रिकमेंडेशंस के लिए, या मतलब थोड़ा डिले करते हैं थोड़ा। एंड रिटर्न द बिल मतलब एज जैसा वो बिल होता है उसको रिटर्न कर देते हैं उसको विद रिकमेंडेशन के लिए, कि इसमें कुछ रिकमेंडेशन देकर कि चेंजेस होने चाहिए। अब बात करते हैं रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन इन इंस्टेंस वेयर द बिल इज इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर इंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो किन केसेस में ये रिजर्व कर सकते हैं, रिजर्व किया जाता है बिल को और उसको फिर प्रेसिडेंट से कंसिडरेशन की जाती है उस मैटर को लेके। तो गवर्नर प्रेसिडेंट से मतलब कंसिडरेशन लेता है कुछ मतलब कुछ बिल्स के ऊपर। तो कौन कौन से हैं, अल्ट्रा वायरस दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अल्ट्रा वायरस होती है, मतलब जो भी प्रोविजन के अगेंस्ट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोविजंस हैं उनसे मैच नहीं करती हैं। अपोज टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होती हैं उनके अपोज होती हैं वो चीज़ें, उनसे उनके साथ मैच नहीं करती हैं। अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के हित में नहीं होती हैं कोई भी चीज़ें, मतलब कंट्री के फेवर में नहीं है, आप मतलब पीपल्स के लिए सिटीजन्स के लिए उनके मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उस बिल के अकॉर्डिंग। ऑफ ग्रेव नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब उसमें मतलब जो नेशनल इम्पोर्टेंस होती है उसको देखते हुए उनको रिजर्व किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बिल है। डीलिंग विद द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज डील्ड विद द आर्टिकल 31A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो एक्विजिशन से रिलेटेड एक्वायर होती हैं प्रॉपर्टीज वगैरह, जो मतलब लैंड एक्वायर होता है कि इस एरिया में करना है, मतलब किन लैंड्स वगैरह को, तो उससे रिलेटेड जो भी होता है उनको ये रिजर्व किया जाता है फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए। An ordinance can be promulgated by him when either legislative assembly or council are not in session। जैसे कि सेंटर में प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है अंडर आर्टिकल 123, यहाँ पे 213 के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है जब दोनों हाउसेज सेशन में नहीं होते हैं, तो एक ऑर्डिनेंस बुलाया जाता है। मतलब जैसे कि अभी रिसेंटली मतलब लॉकडाउन की वजह से सब चीज़ें मतलब कैंसिल है, तो वहाँ पे भी यूपी गवर्नमेंट ने एमपी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के थ्रू कुछ जो लेबर लॉज हैं उनको 3 ईयर्स के लिए टर्मिनेट कर दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया, 3 साल तक वो लेबर लॉज नहीं अप्लाई होंगे।
तो वो ऑर्डिनेंस होता है जब दोनों हाउसेस सेशन में नहीं होते हैं। ही लेज द रिपोर्ट्स आर, इनके मतलब जो होते हैं उनके ऊपर ये रिपोर्ट्स बनाते हैं गवर्नर, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द कंसर्निंग स्टेट की बात कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं जुडिशियल पावर की। तो जुडिशियल पावर जो है गवर्नर की, ही हैज फॉलोइंग पार्डनिंग पावर्स अगेंस्ट द पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमीट एंड कम्यूट। तो इनके पास ये पार्डनिंग पावर है इंडियन मैटर में। एंड प्रेसिडेंट कंसल्ट द गवर्नर वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये भी है इनकी एक जुडिशियल पावर है कि अपॉइंटमेंट करते हैं। एंड in the consultation with the state high court, governor makes appointment, posting and promotion of the district judges का जो promotion होता है, appointment जो होती है, posting जो होती है, वो भी consultation with the high court, state high courts governor, तो ये उनको करते हैं। in the consultation with the state high court, the state public service commission, he also appoint person to the judicial services, कि उनमें से भी अपॉइंट करते हैं जो जुडिशियल सर्विसेज होते हैं अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब बात करते हैं गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात करें तो द गवर्नर ऑफ स्टेट अनलाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कन्फर्ड विद द पावर टू एक्ट एज at his own discretion. There are two categories of discretion for the governor. One is constitutional discretion, other is situational. तो जो constitutional discretion power होती हैं, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो रिजर्वेशन की बिल की बात हो रही है, कोई बिल रिजर्वेशन का है, कास्ट जिसमें कास्ट वगैरह की बात है, रिजर्वेशन दिया जाए किस कास्ट को नहीं, वो सब चीज़ें, तो उसको भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन पावर होती है इनकी, जिसके कंसिडरेशन के लिए रखा जाता है। और जैसे कि सिचुएशनल की बात करें तो सिचुएशनल में जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज ए क्लियर कट मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और व्हेन द चीफ मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज ए नो ऑब्वियस सक्सेसर। तो उस मैटर में इनके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन होती है कि किस तरीके की सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना। जैसे कि डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, and dissolution of the state legislative assembly if the council of minister has lost its majority। तो ये सब क्या है, सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर, जैसे कि हम बात करें अभी रिजर्वेशन बिल की बात की है, रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, ये भी डिस्क्रिशन इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। एंड जैसे सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर ऑफ द स्टेट, ये सब इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ अ गवर्नर कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि मतलब प्रूव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो गवर्नर की। India government the governor has made only by a nominal executive. The real executive constitute the council of minister headed by the chief minister। तो कौन सी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनको नॉमिनल हेड बनाती है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का दिया। कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि अंडर आर्टिकल 154 के अंडर दिया गया है, the executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through the officers subordinate to him in accordance with his constitution. Under Article 163, he will be aided and advised by the Chief Minister and Council of Ministers unless he is performing a function at his own discretion. The power to act at his own discretion is a power that is not given to the President. Under 42nd Amendment Act made the advice of Council of Minister binding on the President but not the Governor in state। तो ये बहुत मतलब जो इनको मतलब डिफरेंट बनाती है प्रेसिडेंट से, तो वो ये आर्टिकल है जहाँ पे प्रेसिडेंट बाउंड होता है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के लिए, बट यहाँ पे गवर्नर बाउंड नहीं होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। Under Article 164, the Council of Ministers are collectively responsible to the state legislative assembly, and this provision is the foundation of the state parliamentary system. And the constitution has mentioned the authority of the governor to decide the validity of his action taken his own discretion in circumstances where his action are called into action. तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि इनको डिफरेंट बनाती हैं उनसे। Thank you.